जेनेसिस 23 चैप्टर 24 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जेनेसिस 23 चैप्टर 24 चैप्टर Rede ekaboroho sihat kun ba akhallara baha akase hikamboroho uziskin barahasa. Reda nekamba oh katinara baha akase hikatkin barahasi anduru. Rede ekaborokombo oh shkarkasi ikillara baha akase hikatkin ba ohlarahasa. Redin ikoboroho azaskin ba augabaraha aseskin ba ariheketina rabahantara. Redin ikoboroho sihan tukoboroho sianduru. Ridan nikambo oshkar खासे हेकोबरोहो ताना मकासियांदु गोबरोहो सा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर के आत्मा, विनती करते हैं ये सारे वचन जो हम पढ़ रहे हैं हमारे अंदर बिठा दे, हमें फिट एंड फिक्स कर। इस वचन के भेद और इस वचन की गहरी बातें, रहस्य हमने खोल खुदा। मेरे परमेश्वर हमसे कुछ छुपा मत इनके रहस्य। हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे वैसे वैसे हमारे अंदर वो भेद पक्के मजबूत हमारे अंदर बिठाने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर से अज्ञानता को दूर कर और हमारा नाश होने मत दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 23 जेनेसिस चैप्टर 23 Sarah's age and death, the purchase of Machpelah, okay, where Sarah was buried. First verse say, and Sarah was 107 and 20 years old. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died in Kirjat Arba. The same is Hebron in the land of Canaan. Hebron in the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. And Abraham stood up from before his dead and spake unto the sons of Heth, saying, I am a stranger and a sojourner with you. Give me a possession of a burying place with you, that I may bury my dead out of my sight. And the children of Heth answered Abraham, saying unto him, Hear us, my Lord, thou art a mighty prince among us. In the choice of our sepulchres bury thy dead. None of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead. And Abraham stood up and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar, that he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field. For as much money as it is worth, he shall give it me for a possession, for a possession of a burying place amongst you. And Ephron dwelt among the children of Heth. And Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying, Nay, my Lord, hear me. The field gave I thee, and the cave that is therein, I gave it thee in the presence of the sons of my people. Give I it thee, bury thy dead. And Abraham bowed down himself before the people of the land. And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me. I will give thee money for the field. Take it of me, and I will bury my dead there. And Ephron answered Abraham, saying unto him, My Lord, hearken unto me. The land is worth 400 shekels of silver. What is
that betwixt me and thee, bury therefore thy dead. And Abraham hearkened unto Ephron, and Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the audience of the sons of Heth, 400 shekels of silver, current money with the merchant. And the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city. And after this Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre, the same is Hebron in the land of Canaan. And the field and the cave and that is therein were made sure unto Abraham for a possession of a burying place by the sons of Heth. Chapter 24. Abraham sendeth his servant to get a wife for his son Isaac. He obtaineth Rebekah, Isaac meeteth her. First verse. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh. One second. And Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites among whom I dwell, but thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. And the servant said unto him, Peradventure, the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy son again unto the land from whence thou comest? And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again. The Lord God of heaven, which took me from my father's house and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land. He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath. Only bring not my son thither again. And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter. And the servant took 10 camels of the camels of his master, and departed for all the goods of his master. We were in his hand, and he arose and went to Mesopotamia unto the city of Nahor. And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. And he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, and send me good speed this day, and show kindness unto my master Abraham. Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water. And let it come to pass that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink, and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. And it came to pass before he had done speaking, that behold, Rebekah came out
who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor. Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder, and the damsel was very fair to look upon, a virgin. Neither had any man known her. And she went down to the well and filled her pitcher and came up. And the servant ran to meet her and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. And she said, Drink, my lord. And she hasted and let down her pitcher upon her hand and gave him drink. And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also until they have done drinking. And she hasted and emptied her pitcher into the trough and ran again unto the well to draw water and drew for all his camels. And the man wondering at her held his peace, to wit whether the Lord had made his journey prosperous or not. And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and 2 bracelets for her hands of 10 shekels weight of gold, and said, Whose daughter art thou? Tell me, I pray thee. Is there room in thy father's house for us to lodge in? And she said unto him, I am the daughter of Bethuel, the son of Milcah, which she bare unto Nahor. She said, Moreover, unto him we have both straw provender enough and room to lodge in. And the man bowed down his head and worshipped the Lord. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth. I being in the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. And the damsel ran and told them of her mother's house these things. And Rebekah had a brother, and his name was Laban. And Laban ran out unto the man unto the well. And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me, that he came unto the man, and behold, he stood by the camels at the well. And he said, Come in, thou blessed of the Lord, wherefore standest thou without? For I have prepared the house and room for the camels. And the man came into the house, and the ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet and the men's feet that were with him. And there was set meat before him to eat, but he said, I will not eat until I have told mine errand. And he said, Speak on. And he said, I am Abraham's servant, and the Lord hath blessed my master greatly, and he is become great, and he hath given him flocks and herds, and silver and gold, and men servants, and maid servants, and camels, and asses. And Sarah, my master's wife, bare a son to my master when she was old, and unto him hath he given all that he hath. And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites in whose land I dwell, but thou shalt go unto my father's house and to my kindred, and take a wife unto my son. And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me. And he said unto me, The Lord before whom I walk will send his angel with thee, and prosper thy way, and thou shalt take a wife for my son of my kindred and of my father's house.
Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred, and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. And I came this day unto the well and said, O Lord God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go, behold, I stand by the well of water, and it shall come to pass that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink, and she said to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels. Let the same be the woman whom the Lord hath appointed out for my master's son. And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder, and she went down unto the well and drew water. And I said unto her, Let me drink, I pray thee. And she made haste and let down her pitcher from her shoulder and said, Drink, and I will give thy camels drink also. So I drank, and she made the camels drink also. And I asked her and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him. And I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands. And I bowed down my head and worshipped the Lord, and blessed the Lord God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. And now, if ye will deal kindly and truly with my master, tell me, and if not, tell me, that I may turn to the right hand or to the left. Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the Lord. We cannot speak unto thee bad or good. Behold, Rebekah is before thee. Take her and go, and let her be thy master's son's wife, as the Lord hath spoken. And it came to pass that when Abraham's servant heard their words, he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. And the servant brought forth jewels of silver and jewels of gold and raiment, and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her mother precious things. And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night. And they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master. And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least 10. After that she shall go. And he said unto them, Hinder me not, seeing the Lord hath prospered my way. Send me away that I may go to my master. And they said, We will call the damsel and inquire at her mouth. And they called Rebekah and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go. And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. And Rebekah arose and her damsels, and they rode upon the camels and followed the man. And the servant took Rebekah and went his way. And Isaac came from the way of the well Lahairoi, for he dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master. Therefore she took a veil and covered herself.
And the servant told Isaac all things that he had done. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent and took Rebekah, and she became his wife. And he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. उत्पत्ति 23 अध्याय 24 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। सारा की मृत्यु और अंतक्रिया का वर्णन 23 अध्याय पहले वचन से। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किरियत तरबा में मर गई। वह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरे निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूँ। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि मैं तुझे देता हूँ, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ। अतः अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन। उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले। तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शेकल रुपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपा तोल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि, जो मम्रे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मम्रे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसहाक के विवाह का वर्णन 24 अध्याय पहले वचन से। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनियों और उसकी सारी सम्मति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की
इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तो तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊंट को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगी, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। तब जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत
कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया, और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गदहे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा। जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी, वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कहे ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी के पुत्री को ले जाऊं। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाई ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया।
फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदिमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहिरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, कितने सच्चाई है तेरे वचनों में खुदा परमेश्वर। पिता, जैसा अब्राहम के दास की अगुवाई स्वर्गदूतों के द्वारा हुई, क्योंकि अब्राहम ने प्रार्थना किया था, इसके लूत बचाया गया। क्योंकि अब्राहम ने प्रार्थना कर रखी थी, इसके लिए हगार और उसका बेटे का भविष्य बनाया गया। पिता परमेश्वर, अब्राहम के साथ तेरा ऐसा प्रार्थना का पिता रिश्ता, पिता, जो हम पिता परमेश्वर विश्वास का पिता उसको कहते, उसको विश्वास के द्वारा तूने धर्मी ठहराया। पिता परमेश्वर, उसके विश्वास के कारण खुदा परमेश्वर इसहाक से तूने उसको आशीषित किया। आबा फादर गॉड, हम तेरे इस पिता महान ऐसे पर्सनालिटी को पिता परमेश्वर आदर करते हैं। हम पिता परमेश्वर इस रहस्य को समझते हैं, किस प्रकार से मेरे परमेश्वर तू इन बातों में अब्राहम को जवाब दिया जाता रहा। आबा फादर गॉड, हमारे भी प्रार्थना का जवाब दिए जाते रहने के लिए पिता हमें योग्य बना। हमारे भी परमेश्वर पिता परमेश्वर ऐसे पिता परमेश्वर समस्याएं जो पिता हम पिता हल करना चाहते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना या कहीं पर आना जाना या कोई घर खरीदना या कोई कुछ जगह ज़मीनों के काम करना, मेरे पिता कुछ भी ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई भी ऐसे कामकाज खुदा जो हम करना चाहते हैं, तेरे स्वर्गदूतों की पिता परमेश्वर हम सहायता मांगते हैं। हमारे आगे आगे तेरे स्वर्गदूत जाए और पिता हमारा फिजिकल जो भी काम है खुदा परमेश्वर वो पूरा करके दे, निश्चित रूप में खुदा सफल करके हमें लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में हमको पिता डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 7 चैप्टर 54 वर्स से 60 वर्स, नेहमिया 13 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 वचन से 60 वचन तक, नेहमिया 13 अध्याय। हम अपने अकेले में पर्सनल व्यक्तिगत समय में इन अध्यायों के वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा कि हमारे पर्सनल व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर का आत्मा हमारी
खामियां, हमारे अच्छा या बुरा या जो भी परमेश्वर डील करना चाहता है, निपटना चाहता है, हमारा सामना करना चाहता है, हम उसको सामना करने दे और हम में सुधार लाकर हमें सहायता करने दे। इसीलिए हम व्यक्तिगत समय को दे रहे हैं ये अध्यायों को पढ़ने के लिए। ज़रूरी नहीं हम सब ने ऐसा ही करना है। आप जिस प्रकार से इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं वैसे कीजिए, क्योंकि निश्चित करना है परमेश्वर के आत्मा ही से हमको सीखना है और हमने निश्चित रूप से परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है इस 2 साल के बाइबल स्टडी के दौरान। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आने की हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।